तो स्टडी ये कहती है कि जब कोई दलित, कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति दुकान खोलता है तो पूरे गांव के अपर कास्ट गोलबंदी करके ये कहते हैं कि तुम इसकी दुकान से कुछ नहीं खरीदोगे। लेकिन ज़्यादातर जो चीप लेबर आता है, जिसको आप चीप लेबर कहोगे, जो 14 घंटे नौकरी करता है, जो आपके होटलों में प्लेट साफ करता है, जो आपकी सड़कें साफ करता है, जो आपका कंस्ट्रक्शन मजदूर है, जो आपका स्टेशन पे छोटा मोटा सामान बेचता है, या फैक्ट्रियों में, छोटे मोटे कारखानों में जो 14-14 घंटे काम करता है 10,000 के लिए, 8,000 के लिए, 5,000 के लिए, या बंगलों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, किसी घर में पोछा लगाने वाली, झाड़ू लगाने वाली, इन सभी को अगर इकट्ठा आप देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं काम करती है और पुरुष काम करते हैं। He worked closely with Kashana Sawant for passing the caste ordinance in Seattle City Council, and it is working towards passage of SB 403 caste ordinance in California. Currently, he is leading a coalition, America Against Caste Discrimination, which coalition of over 20 US civil rights organization. Our second panelist is Sumit Maskar. He is a professor of sociology at the Jindal School of Government and Public Policy. He is also holds a research partner position at the Max Planck Institute for the Study of Religion and Ethnic Diversity in Germany. Professor Sumit Maskar received his PhD in sociology from the University of Oxford and MA and MPhil degree in political science from JNU Jawaharlal Nehru University. His academic writings have been published in various journals and papers. So I invite to both our panelists on the stage, and the topic of first panel is Need of Independent Dalit Women's Movement. और इस पैनल को चेयर करेंगे हमारे आइस्का के प्रेसिडेंट डॉक्टर राहुल सोनपिंपले सर. Like I was introduced, thank you for the very nice introduction. I am also a spokesperson for Ambedkar International Center based in the USA. I don't know, some of you might have heard, and I wanted to start with that news, so to say. Ambedkar International Center is unveiling a statue of Dr. Ambedkar in Accokeek, Maryland on October 14th October. The importance of 14th October need not be told in Nagpur at least. That's the day Dr. Babasaheb Ambedkar gave us a Diksha for Buddhism, and that's the day the statue of Dr. B.R. Ambedkar, Babasaheb Ambedkar as we lovingly call him, is going to be unveiled in USA. It's the first such statue. It is about 14 feet tall. A lot of Ambedkarites who are in the US have worked for this inauguration. I must congratulate them, and we should be happy, we should be proud that the message of Dr. Ambedkar is now reaching all over the US. The topic given to me is the caste in corporate. A lot of my work, I worked with Infosys for about 14 years in senior roles, Infosys, Capgemini, and CSS corporations, and of course in the US about 8 to 10 years of work. So I have seen that the caste in some sense
they kind of just deny the existence of caste in the corporate. When we talk about corporate, we are talking about the private sector. Private sector behaves as if the caste just doesn't exist. They completely, whatever the caste agitations that we are doing in the US, when we want to talk about the caste, they say, oh, caste just doesn't exist. This is some old thing, this is some invention by the US and so on. Caste just doesn't exist. As far as caste in the Indian corporate structures, systems, processes, it just doesn't exist. Or they want to believe. We know that the caste exists in every step, everywhere the caste exists. The first thing that you meet each other, people just want to know the caste, especially the upper caste, because they want to boast about their caste, that they are from the upper caste. They want to show you down that you do not belong to this place or things like that. They have been able to block the caste discussions, hiring of the caste oppressed people. They of course talk about diversity, but unlike the true diversity, which would mean religion, caste, race, gender, sexual orientation, etc., they have reduced, at least in India, only to the gender diversity. They do not, you will not hear about them talking about religion, you will not hear them talking about sexual orientation. All you will hear is that women, there should be the workforce should be diversified by gender. It's a good thing, there is no doubt. But in that women workforce, do we have, let's say, the lower caste, the oppressed caste women in the workforce? The answer is obviously no. In the US context, since I have been kind of active in the US context, when we want to kind of initiate some of the caste discussions during the diversity week and so on, you might have heard about Tanmoji Soundarajan, who is a caste activist in the US. She wanted to talk about caste in Google, and she was prevented talking about caste in Google. And of course, it became a big. Similarly, when I was introduced in one of the corporation, Dassault Avionics, by a Muslim friend to talk about caste in Dassault Avionics. So I made a presentation. We have prepared a presentation on the caste. I made a presentation, and HR kind of okayed the presentation. They said, okay, now we will schedule your talk. But then soon I heard that there is an objection raised by an upper caste woman, Kamat. I don't want to give the first name, the second name being Kamat, upper caste woman. So HR then again asked me to come and make a presentation. This time, prepared a little extra hard, made sure that I have read the Annihilation of Caste once again, made sure that the presentation is all polished and so on. I made the full presentation for about 45 minutes, explaining the caste, explaining the biases, explaining the discrimination, explaining the violence that the caste inflicts on us. The presentation was done, and then I was, of course, told to kind of go away. And then the discussions in the background were very funny, which were kind of narrated to me by my friend. So the objection the lady had was, caste is a taboo subject. That was her first objection. The second objection was the caste divides the society. And the third objection, see, we also have our president is from the scheduled caste community, so we don't have caste. Thankfully, there was an African American woman who, of course, suffered huge discrimination. She was present, and she said, she retorted, she struck down all the 3 points that this lady said. She said, the diversity week, the diversity discussion is about talking about all the taboo subjects, the LGBTQ, and all the kinds of taboos that are there. That is why we have this diversity week. So there is nothing taboo when it comes to diversity week discussions. That's the first. On the caste divides the society, this lady said, the society is already divided. And we must talk about those divisions. We must try to bridge those gaps. Why those divisions exist, and what can we do to bridge the gap, to have this divisiveness that is there in the society to kind of go away. On the third point, when she says that our president is in scheduled caste, I'm talking about the Indian previous president. This lady, African American lady, said, you know what? We also had a black president. Does that mean that the racism has gone away? The answer is no. So with these retorts, this lady was shut. I was supposed to talk. My talk was going to get scheduled.
But as luck would have had it, the HR person resigned. This lady actually became, the lady who objected became the diversity head, and my talk never happened. So these are the kind of unfortunate things. So whenever we want to talk about caste, whenever we want to kind of make some amends, when we get access, because a Muslim friend was kind enough to introduce me, I was at least given an invitation. But then this is what it is. In Marathi we say, Nakticha Lagnala 1700 Vigna. So that kind of stuff. Of course, there is a lot of work that is happening in the US. None of the Indian companies have caste mentioned in their discrimination policies or the things not to do. You will not find any Indian company voluntarily having included caste. In the US, however, we have been able to make significant progress. Companies like Apple, Facebook, Dell Computers, IBM, lot of these companies have included caste even without the laws in place. When we work with Kshama Sawant of Seattle City Council member, she with the Indian background, she understands the caste, and we have been working with this Seattle Civil Rights Group for close to 5 years. We had done some when during the COVID we did the oxygen concentrators, sending it to India. So that kind of work, we're working very closely with Seattle. So we had certain bonds developed with this Seattle organization, Coalition of Seattle Indian Americans. And with the close proximity to Kshama Sawant, they talked about let's bring a resolution. A lot of US universities are talking about passing this resolution saying that caste discrimination should be banned on the campuses. So they made an approach to Kshama Sawant, who is a city councillor, saying, let's pass a resolution saying, the caste discrimination is banned. Kshama Sawant, being the councillor, she said, let's not stop at just the declaration. Let's make it a law. And then Ambedkar International Center, various other Ambedkarite organizations have worked very, very closely with Kshama Sawant, including Equality Labs, Ambedkar Association of North America, Ambedkar International Mission, Ambedkar International Center, and this resolution was passed. Why I am bringing the caste, of course, there are very few people. Our people are now slowly making inroads into the US and other countries. As usual, first the Brahmins make their inroads, being the capital that they have, social, educational, economical capital that they have. They make inroads, they go there ahead. Our people are slowly making inroads. And now when we are finding some of this discrimination and making these laws, they are of course fighting tooth and nail. But these laws in a small city like Seattle, and of course a large state like California, which may pass the SB 403, the California Caste Discrimination Bill, approved by the Senate and the Assembly, to be signed by the governor, can happen in a day or two or till up to 14th of October anytime. These resolutions, these laws in the US are very, very important, especially when it comes to the corporate structures or companies or a private sector. The caste discrimination that happens in India, in the villages, in the rural areas is very violent. There would be rape, there will be name calling, there will be abuses, there will be physical violence, murders, beatings. In the corporate sector, it doesn't happen like this. In the corporate sector, when you are called for an interview, if you get a referral in a company, I'll come to that in a moment. If you get an interview, the guys will try to kind of be nice, they will try to kind of find out your caste. And the caste is not very well hidden, all said and done, right? It's there in the name, or where are you from, which region. In fact, there are some algorithms in Indian Institute of Management, Bangalore, etc. If given your full name and the state that you come from, the algorithm can find out your caste with around 95% accuracy. So, and we know this, right? Meshram, Gajbhiye, Kamde, it's known. And of course, the state people know it because the caste also has the state thing. So all they are interested is in finding the caste. Once they find the caste, they will not hire you. Once by mistake, if they hire you, then if they find out what your caste is, then you will be denied good projects, you will be denied promotions, you will be denied good appraisals and things of that nature. So it is not like abusive that somebody is going to kind of beat you up and things like that.
Indian law, the Indian caste atrocity law, which deals with some of these violent crimes, violent caste-based crimes, is not able to tackle this. The laws that are being passed with the Seattle City Council, with the California laws, these are the laws. In that sense, United States is, or some of these foreign countries are slightly ahead. They take the discrimination of any kind a little more seriously and try to work through. So these laws are actually ahead of India. The Cisco caste discrimination case that happened in 2020 in the US, wherein a person is able to kind of fight that there is a caste discrimination happening in my company, I'm not getting the projects, I'm not getting the promotions, I'm not getting the stock options and whatever, because his boss found out what his caste is. And again, they found out what is your JEE rank. If your JEE rank is lower, then you must have come through the reservation. Reservation has become a new casteism, especially again in the corporate sector. If they find out that your views are pro-reservation, if you have taken the advantage of reservation, that's the kind of giveaway for you, despite you trying to hide whichever way, that you belong to the lower caste. And then once that they find out, then again, promotions are gone, good appraisals are gone, stock options are gone, all of that. The Cisco caste discrimination kind of case cannot unfortunately happen in India. Indian laws are not geared, they are not nuanced to handle some of these subtle discrimination that people face in the corporate sector. Talking about referrals, which I referred earlier on, lot of hiring, over 90% of the hiring in the corporate sector happens through referrals. And through referrals, when it comes to through referrals, the caste networks are so rigid and so well kind of entrenched in the society. A Brahmin typically will only refer a Brahmin. A Vaishya will only refer, or a Baniya will only refer a Baniya. They will not refer kind of across the caste. And so that's your first barrier. If you do not get a good referral, you don't even get a call. And the discrimination, some of the discriminations in the US, when the guys are frustrated to find out, unable to find out your caste, there are instances wherein a caste of a candidate has been directly asked in the interview. So we have found that people are not getting hired, the caste oppressed people are facing some of these subtle discriminations more prominently in US. And fortunately for us, some of these laws in the US are at least catching up. So referrals is another way of perpetuating this caste hegemony that the upper caste have. Why again, coming back to these laws, why these laws are very important. Once these laws are passed, the employees they have to kind of go through some of the training wherein they are told not to do certain things. Like asking caste in an interview, that guy will get fired. The laws will be so strict. If you go and complain saying that you were asked, you are cast in an interview, you will be fired. If you are able to prove that, the people will have to go through the training that the things that you should ask or you should not ask. That you cannot ask what his father's profession is. Some of the giveaway reasons, how they find out caste, you will not be able to ask a question like, what is your ranking in the JEE, the joint entrance exam for the IIT entrance? You will not be able to ask some of those questions. And these laws, these policies will hopefully India will be able to kind of import some of these policies back here in India. But with these laws will also, there is a law in the US, equality of opportunity, equal opportunity. So when they publish the reports on their employee strength and things like that, they have to publish the report along the race lines, and once the caste becomes a part of the law, along the caste lines, religion, whether you are discriminating people based on age while hiring, all of these reports, all the US companies kind of give. Once the caste becomes a part of it, some of these reports as to how you are hiring on the caste lines will also be made compulsory. Therefore, it may even amount to what is called an affirmative action in the US. One of the basic principles of affirmative action is, in any sphere of life, the people should be representative of what the normal population percentages are. So if there is
15% African American, then typically in the workforce 15% of the African Americans should exist. If they do not exist, then what are the measures those companies? So companies get kind of evaluated, companies get kind of asked, companies have to publish these reports. Once these laws come in, those are the things that will happen in the US, and hopefully in India, however, we have the reservation law, right? Affirmative action is kind of a little soft way, whereas the reservation law is a very hard law. You are held to a percentage. 15% scheduled caste, 7.5% scheduled tribe, 22% OBC is reservation, and now of course the EWS and whatnot. We need to have these reservations in the private sector as well. That's the only way that people will make their significant inroads. Otherwise, it is left to themselves. It's just not going to happen. If you want to make the policy, if you want to make the recommendation saying that include caste, that simple thing they will not include. They will say, no, we are all merit based. Of course, they want to deny that all the advantages that they have had, that they denied the lowered caste people to study for centuries. Therefore, there is a backlog. Therefore, people are not able to make it to the private sector, or they just want to kind of deny all that. So unless reservation policies are kind of implemented in the private sector, there is the private sector will kind of remain out of bounds. Some of the latest developments, like when Bihar caste survey, when we talk about, those numbers are very stark. And now some of this data will also come on the lines of what is the land holding of the scheduled castes have, what is the land holding of the upper caste have, and the numbers are going to be extremely staggering. We know this colloquially, we know this informally, but having these numbers out in the open will make a huge difference. The only answer to this is implementing reservation in a private sector. Otherwise, these guys are not going to do it. Thank you very much. जिस विषय पे मुझे राहुल ने यहाँ बोलने को कहा है वो है रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, जिसको लेकर अनिल सर ने भी अभी कुछ बात रखी अपनी। उसको लेके मैं लेबर स्कॉलर हूँ और उसको लेके मैं काफ़ी अपना फोकस रखता हूँ इस प्राइवेट सेक्टर को लेकर के भी। तो मैं शुरुआत इसी से करूँगा कि हम लोग जिस चीज़ को प्राइवेट सेक्टर समझते हैं वो सही है कि नहीं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मैं जब बोल रहा हूँ पहले से पता हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इस चीज़ को कम से कम में दोहराया जाए कि प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है। जब हम रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर की डिमांड कर रहे हैं तो पहले हम समझ लें कि प्राइवेट सेक्टर है क्या। तो जहाँ तक हमारे रिजर्वेशन का सवाल है, दो मुद्दों पर हम लोग रिजर्वेशन की डिमांड करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो है, अब उसमें और रिजर्वेशन की डिमांड होती रहेगी। लेकिन जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की बात है उसके दो भाग हैं, पहला है एजुकेशन का और दूसरा है इकोनॉमी का। और इकोनॉमी में भी दो पार्ट है, एक जॉब्स है और दूसरा है इकोनॉमी में हमारा कितना हिस्सा होना चाहिए। तो उस तरीके से ये तीन भाग होते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर के। मेरी अपनी राय ये है कि सब लोग 1990s में जब से हमारा लिबरलाइजेशन हुआ है उस पे ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता है कि अब हमें प्राइवेट सेक्टर पे डिमांड करना चाहिए। मेरी अपनी राय एज अ स्कॉलर ये है कि हम तो काफ़ी लेट है इस डिमांड को करने में। हमको 1950s में ही रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर को डिमांड कर लेना चाहिए था। उसका कारण ये है, और मैं अभी बताता हूँ, कि जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है वहाँ पे हम हमारा जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद से एजुकेशन के मामले में सरकार की काफ़ी स्कूल रही है हमारे देश में। 1950, 60s तक, 70 तक सरकार की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ भी रही है और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी रहे, जैसे IIT है, JNU है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। तो ये बहुत सारा गवर्नमेंट का सेक्टर रहा है, इसलिए हमारा ध्यान उस तरफ नहीं गया है, लेकिन आज ज़रूरत है उस पर जाने की। लेकिन दूसरा जो शॉकिंग है, जिसको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमको 1950s में ही डिमांड कर लेनी चाहिए थी रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर की, तो ये है जहाँ तक इकोनॉमी की बात है। तो जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या OBC के हो, तो हमको सबसे पहली बात समझनी ये है कि जब हमको इस देश से आज़ादी मिल गई ब्रिटिशों से, उस समय पे हमारी 94% इकोनॉमी जो है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी। इसका मतलब है उस इकोनॉमी में कोई रिजर्वेशन था ही नहीं।
ठीक है। दूसरा बचता है 6%, और उस 6% में भी 2 या 2.5% था प्राइवेट फॉर्मल सेक्टर, तो उसमें भी रिजर्वेशन नहीं है, तो बचता है आपका 3%। तो इसका मतलब है कि 100 जॉब जो थे एक हमारे देश में 1950 में, उसमें से सिर्फ 3 नौकरियों में हमने रिजर्वेशन पे डिमांड की बात रखी, और उसमें हमको कुछ हद तक रिजर्वेशन मिला भी। ज़्यादातर वो है क्लास 3 और 4 में। इसका सीधा मतलब ये है कि जो 97% इस देश का जो एम्प्लॉयमेंट है, 96% कम से कम 1950 में वो रिजर्वेशन से बाहर रहा है। तो हमारा जो फोकस, पूरी एनर्जी रही है वो सरकारी जॉब्स में ही रही है। वहाँ पे भी हमारी काफ़ी लड़ाई रही है, और वहाँ पे भी देखेंगे तो हमारे रिजर्वेशंस फुलफ़िल नहीं हुए हैं शुरुआती दौर में। उसको फुलफ़िल होते होते काफ़ी समय लग गया है। लेकिन ये जो आंकड़ा है अभी, जो मैंने अभी बताया है कि कम से कम 96% जो है वो प्राइवेट सेक्टर रहा है 1950 में। आज अगर हम उस चीज़ की बात करें तो वो आंकड़ा 94 से बढ़कर अब वो 97-98 तक पहुंच चुका है। तो इसका मतलब जो सरकारी नौकरियां है हमारी, वो सिर्फ मात्र 1.5% रह गई है, और उसमें भी क्लास 3 और क्लास 4 जो क्लरिकल जॉब है और सबसे जो निचले स्तर का जो जॉब्स है, उसको अब कॉन्ट्रैक्टीकरण जिसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, इसका मतलब वहाँ रिजर्वेशन का स्कोप ही खत्म हो गया है। मतलब जो सबसे अच्छी नौकरियां है वो बहुत ही कम मात्रा में रह गई है। तो हमें ये अब इस बात को रखना है कि रिजर्वेशन की डिमांड 1990s तो बहुत अच्छी बात है, उसका रेफरेंस देना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन जो स्कॉलर्स है उन्होंने भी हमको काफ़ी हद तक गुमराह किया है। ये हमारी डिमांड 1950 से होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, लेट हुआ है, लेकिन अब ये बोलते देर आए दुरुस्त है, अभी हम लोग इस डिमांड को पकड़ के रखना ज़रूरी है। अब ये हुई नौकरियों की बात। दूसरी बात आती है यहाँ पर जो बिजनेस की, कि क्या हमारे लोग बिजनेस कर सकते हैं। अब जहाँ तक बिजनेस की बात है, तो अगर हम उसका 150-200 साल का इतिहास देखें तो उसमें कुछ जातियाँ हैं, उनका उसमें प्रभुत्व रहा है, जो उनका अपना डोमिनेंस रहा है। वो है मारवाड़ी, जैन, खत्री, भाटिया, पारसी, कुछ मेमन, ये गुजरात की तरफ से चटियार्स, और ये सारी जो है कॉलोनियल इंडिया, मतलब जो जब ब्रिटिश सरकार राज कर रही थी तब ये जातियों का पूरा डोमिनेंस रहा है, और उसको लेकर के ब्रिटिश सरकार ने भी काफ़ी मदद की, उस पर मैं बात करता हूँ। जहाँ तक 20th सेंचुरी, जैसे ही हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद देखते हैं 30 सालों में, तो ब्राह्मण जाति बहुत आगे उभर के आती है। इन्फोसिस जैसी कंपनी है, और पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ब्राह्मण एक बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट बन के उभर के आता है। और उसके बाद जिसको हम डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठा है, वहाँ रेड्डी है, कम्मा है, वहाँ पे आपके जाट समुदाय है, पाटीदार है। तो ये लोग 1990 के बाद बहुत बड़ा एक ऐसा कैपिटलिस्ट, या उसको कैपिटलिस्ट ही वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, कि यही पूरा उभर के आया है। तो ये जातियाँ हैं जो हमारे देश को, इकोनॉमी को चला रही है। ये ज़्यादा से ज़्यादा गिन के अगर हाथ में रखो तो 12 जातियों से ऊपर नहीं जा रहा है, और यही जातियाँ हैं जो सरकार से कॉन्ट्रैक्ट पे चलती है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, और ये बहुत ही एक रिसर्चर का बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कि दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन बिना सरकार के मदद के, पेट्रोनेज के बिजनेस कर ही नहीं सकता। तो क्योंकि जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, रिजर्वेशन की बात करेंगे, वहाँ 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। एक आएगी मेरिट, और दूसरी आएगी एफिशिएंसी। वो कहेंगे यहाँ हम अगर रिजर्वेशन लाते हैं तो ये एफिशिएंसी को ख़त्म कर देगा, ये मेरिट को ख़त्म कर देगा। ये ड्रामा चलता रहेगा, हमें उस ड्रामे में जाना नहीं है। हमें अपनी डिमांड को लग के रहना है, क्योंकि ये सारी बिजनेस कम्युनिटीज़ जो है, बिना सरकार के सपोर्ट के कोई चल नहीं सकता, क्योंकि ये इनको अश्योर्ड मार्केट देती है। जब सरकार को कोई मटेरियल सप्लाई करना है तो सरकार उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है, उनको बहुत ही आसान है ये सारे बिजनेस करना। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ तक रिजर्वेशन की डिमांड रखें, हम बहुत कॉन्क्रीट तरीके से उस डिमांड को रखें कि हम रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। आज की अगर इकोनॉमी की स्थिति देखें हम, जहाँ तक कॉरपोरेट बोर्ड की बात करें, हम कॉरपोरेट की मतलब जो तो सबसे ज़्यादा मेरिटोरियस और एफिशिएंट समझा जाता है,
तो उसकी स्थिति क्या है, वो किसके कंट्रोल में है। तो एक अभी स्टडी हुई थी कुछ साल पहले, जिन्होंने 8000 कॉरपोरेट बोर्ड मेंबर्स का स्टडी किया है, ठीक है। तो हमारे देश में जितनी भी कॉरपोरेट कंपनीज है उसमें उन्होंने देखा है कि ये कौन कॉरपोरेट बोर्ड जो है, हर एक कंपनी का कॉरपोरेट बोर्ड होता है, उस कॉरपोरेट बोर्ड पे कौन लोग बैठे हैं। तो जो मालिक है उसकी जाति क्या है और वो जो मेंबर है। तो टोटल 8000 कॉरपोरेट मेंबर की स्टडी की गई और उसका स्टडी का जो फाइंडिंग है वो फॉलोइंग है। 92% जो कॉरपोरेट बोर्ड मेंबर्स है वो अपर कास्ट जाति से आते हैं, 92%। और उस 92% का अगर हम फर्दर डिवीजन देखते हैं, 44% ब्राह्मण्स, 44% वैश्यस और 3.5% क्षत्रियस है। और टोटल 100% कॉरपोरेट बोर्ड में देखें तो सिर्फ और सिर्फ 3.5% अदर बैकवर्ड कास्ट्स हैं और 3.5% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मिला करके है। तो ये फिलहाल आज की स्थिति है हमारी। तो इसीलिए इस डिमांड को रखना बहुत ज़रूरी है। अब इस डिमांड को कैसे रखा जाए, इसका ऑफ कोर्स हम लोग आगे जा कर के सोच विचार कर सकते हैं। मैं अपने कुछ विचार यहाँ रखना चाहूँगा। तो जहाँ तक रिजर्वेशन इन एजुकेशन की बात है, शुरुआती दौर में जैसे मैंने कहा कि 1950s में 60s में सरकार का काफ़ी कंट्रोल रहा है शिक्षा पर, चाहे वो स्कूल्स हो, हायर एजुकेशन हो, सरकार की बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स रही है। लेकिन हम देखेंगे कि 1965-70 आते आते धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुका है। आपके मेडिकल कॉलेजेस, आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ये दो पर्टिकुलरली पूरे देश में, और उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री है महाराष्ट्र और कर्नाटका, और उसका प्रोडक्शन किया है हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स बने हैं या एमएलए बने उन्होंने। तो वहाँ से ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है प्राइवेटाइजेशन की, और वो प्राइवेटाइजेशन होने के चक्कर में अभी बहुत सारी जो तादाद है वो उससे अलग होती जा रही है कि वो एंट्री नहीं कर पा रही। उनके पास मेरिट है, उनके पास जो रैंक है वो होने चाहिए, लेकिन वो अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ नहीं जा रहे। और उसका जो एक्सपांशन है, जिसको हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन कहते हैं, वो अब बहुत बड़ा हो चुका है। अब ये सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज तक सीमित नहीं है। अब सोशल साइंस भी पढ़ना है आपको, चाहे वो पॉलिटिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, आर्ट्स या फिर लॉ, इनके अब प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी है। मैं खुद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मैं क्लोजली इस चीज़ को 6 साल से देख रहा हूँ। मेरे अपने नज़रिए में अगर मैं 10 साल की सिचुएशन को देखूँ आगे की, तो हमारे देश में अब इस चीज़ का एक्सपांशन बहुत बुरी मात्रा में होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी इंस्टीट्यूशन बंद हो रही है तुरंत, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन को प्रेस्टीज मिलता है हम वहीं पे जाके पढ़ते हैं। जैसे मेरे बैकग्राउंड का इंसान, राहुल का बैकग्राउंड का इंसान और बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो हैदराबाद में JNU में पढ़े हैं, वो बहुत ही इकोनॉमी, सोशली तो हम लोग शेड्यूल कास्ट है, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते, वो हम जंप कर पाए वहाँ पे। अब वो पॉसिबिलिटी 10 साल के बाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि देश में जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे वो प्राइवेट माने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो बंदा है वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट के कितना ही अच्छा नाम हो उसका, जैसे JNU ही हो, JNU का भी प्रेस्टीज 10 से 15 साल तक का ही है। उसकी डेडलाइन 15, मेरा अपना असेसमेंट है 15 साल। 15 साल के बाद वो प्रेस्टीज कोई अशोका यूनिवर्सिटी, कोई जिंदल, कोई अजीम प्रेम जी, ये सारे उनको ले लेंगे। तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी डिमांड को आगे रखना है। तो जहाँ तक यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात है, तो मुझे लगता है कि एक तो पहले तो हमें अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलनी चाहिए, जहाँ हम हमारे बच्चों को फ्री में या जो भी पॉसिबिलिटी है वो रखें। दूसरी बात जो अभी से इलेक्शन में हम लोग को डिमांड रखनी चाहिए वो ये कि हमारे बच्चों के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप, चाहे वो इस कंट्री की कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जो प्रेस्टिजियस है वही जाके आगे डोमिनेट करता है। आज यहाँ JNU के इतने लोग इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो प्रेस्टिजियस है और हम लोग सब उसका बेनिफिट ले पाए 150 रुपया सेमेस्टर की फ़ी दे करके। बहुत सारी जनरेशन्स वहाँ पढ़ी है, लेकिन उसका प्रेस्टीज खत्म होने वाला है और हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर वो प्रेस्टीज खत्म हो रहा है तो प्रेस्टीज कहाँ जा रहा है? तो जो भी इंस्टीट्यूशन में जा रहा है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सरकार से बोलना है कि भाई हमारे 50,000 बच्चों को अब स्कॉलरशिप देना है,
तो वो एक डिमांड मुझे लगता है इस फोरम से राहुल भाई को मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ये थोड़ा सा इस पर बाद में आप हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन मैं इनिशियल जो बातें रख रहा हूँ। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, अब देखो एम्प्लॉयमेंट का मैंने पहले कह दिया यहाँ पर कि हमें देखना होगा कि इकोनॉमी किसके हाथ में है। अब इकोनॉमी सिर्फ 12 से 15 जातियों के हाथ में हमारे देश की, तो क्या आपको लगता है कि वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उस चीज़ को? बहुत मुश्किल है। जब सरकार की इंस्टीट्यूशन ही नहीं कर पाई है तो प्राइवेट को तो बनाना बहुत मुश्किल है। तो हमें इसका क्या फिर ऑप्शन है हमारे पास? क्योंकि याद रखना है हमें कि 97% हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल सेक्टर है। इसका मतलब सरकार ने खुद ही डिक्लेयर किया है कि हम इस इकोनॉमी में इंटरफेयर करेंगे ही नहीं। तो अगर ये सरकार की पोजीशन है कि इनफॉर्मल का मतलब हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको टैकल किया जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। 15 जातियाँ पूरी चीज़ को कंट्रोल करती है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कंट्रोल करती है, और वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग कंट्रोल करती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। उसका दूसरा एक पार्ट है कि जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि और एक जो स्टडी है, क्योंकि मैं समय के अभाव से मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसका यही है कि उस स्टडी प्रोफेसर थोरात ने की है मेरे ख्याल से। उसमें देखा है कि जो एम्प्लॉयर है, मतलब जो मालिक है उस छोटे से दुकान का, फैक्ट्री का, जो भी, और उसके एम्प्लॉयर की जाति क्या है। उस स्टडी का कहना है कि जो लार्ज मेजॉरिटी के जो कंक्लूजन है कि मैक्सिमम जो जाति का एम्प्लॉयर है उसी जाति के एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते हैं। तो अगर सिचुएशन ये है तो हमें वहाँ पे रिजर्वेशन से घुसना इम्पॉसिबल है। और ये छोटी छोटी कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसमें इम्पॉसिबल है कि सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो फिर हमारे पास क्या बचता है सोल्यूशन? फिर हमारे पास सोल्यूशन बचता है कि जो इकोनॉमी में जो स्टेक है, कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं सरकार से निगोशिएट करें। और वो मुझे लगता है कि सामाजिक आंदोलनों को भी थोड़ा उस मामले में हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये डिमांड बहुत आगे जा कर के हमको पुश करनी चाहिए कि बहुत सारे सरकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कम से कम वहाँ रिजर्वेशन का हम डिमांड कर सकते हैं। इसका पहला एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में हुआ था, भोपाल डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन है, हमारे पास एग्जाम्पल है, और वो सक्सेसफुल मॉडल रहा है। उसका रिएक्शन बहुत ऑब्वियसली हमारे अच्छा नहीं रहा है, लेकिन सरकार को मुझे लगता है ये जब तक डिमांड ये सोशल मूवमेंट से या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आती है, मुझे नहीं लगता कि हमारे भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसको पुश कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक इकोनॉमी में स्टेक की बात है, इसको हमको ज़रूर आगे लेना चाहिए। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, नागलोक जैसी इंस्टीट्यूशंस जहाँ खड़ी है, ये हमारे लिए अच्छे मॉडल्स है। इन टर्म्स ऑफ जगह की डिमांड है, सर से गवर्नमेंट से सब्सिडी लेकर लैंड लेना है, और हम लोग भी एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन सोच सकते हैं। सोचिए बाबा साहेब ने 1930s, 40s, 50s में ऐसी इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश की है बॉम्बे और औरंगाबाद से लेकर के, कि वहाँ पे सबसे बेस्ट स्टूडेंट अट्रैक्ट होते थे। उन्होंने सबसे बेस्ट टैलेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेसर्स रिक्रूट किए थे। तो अगर वो 50, 60, 70 साल पहले हो सकता था, तो आज भी ये हो सकता है। इसके लिए लंबी प्लानिंग की ज़रूरत है, अलग अलग लोगों को अलग अलग स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। एक इंसान से ये हो नहीं पाएगा, लेकिन हमें भी उस कंपटीशन का सोचना चाहिए। हमारे लिए ऑफ कोर्स सबसे अच्छा मॉडल है जो ब्लैक्स ने अमेरिका में किया है इस मामले में। तो हमें उन ब्लैक्स की जो स्ट्रैटेजी है ब्लैक कम्युनिटी की अमेरिका में, कि वो कैपिटलिज्म की तरफ कैसे या फिर वो बिजनेस में कैसे इंटरेस्ट लेती है, उसका हमें ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ जोड़ते हुए मैं ये एक छोटा सा पॉइंट रखूँगा कि बहुत सारी जो चीज़ें बाबा साहेब की राइटिंग को लेकर सोशलिज़म का जिक्र किया जाएगा, और वो बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही आइडियल दुनिया में हमें वो चीज़ होनी चाहिए। एक आइडियल दुनिया में सारी इंस्टीट्यूशंस सरकारी होनी चाहिए, ताकि हर एक स्टूडेंट वहाँ फ्रीली पढ़ सके। लेकिन हम आइडियल दुनिया में रहते नहीं हैं। भले हमारा वो आइडियल गोल हो सकता है, लेकिन हम आइडियल दुनिया में रहते नहीं हैं। तो फिर हमें इमीडिएट कुछ सोल्यूशन होने चाहिए, हमारे पास इमीडिएट प्रोग्राम होना चाहिए, और कुछ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स होने चाहिए। हम आज के डेट में अगर हम सरकार से कहते हैं कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को फंड करो, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि अब सरकार के इंस्टीट्यूशंस में बहुत ही डिक्लाइन हो गया है। सरकार की फंडिंग कम हो गई है,
वहाँ जो प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं उनका अपनी क्वालिफिकेशंस काफ़ी वीक है, तो उस तरह कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे जो बैठे हैं जिनके बच्चे काफ़ी बड़े हैं वो खुद वहाँ उनको एनरोल नहीं करेंगे। अगर आपकी खुद की राय ये है कि आप खुद के बच्चों को पब्लिक इंस्टीट्यूशन में नहीं भेजेंगे तो आप क्यों उस चीज़ को डिमांड में रखना चाहेंगे? तो मुझे लगता है हमें थोड़ा सा अल्टरनेट तरीके से सोचना चाहिए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की है, ताकि हमारी नेचर ऑफ डिमांड जो है वो बदल गई है। और पूरा अगर हम अभी आखिरी पॉइंट जो है कि अगर हम पूरी चीज़ देखें कि अब हायर एजुकेशन जो सीढ़ी है मोबिलिटी की, वो उसका सिचुएशन काफ़ी बदलने वाला है। मैं बस एक दो पॉइंट रखूँगा यहाँ पर और फिर हम डिस्कशन करना चाहेंगे। पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर अब फैलना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और जो इस देश के जो एलिट है, जो अपर क्लास एलिट है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, वो ऑलरेडी अपने बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भेजना उन्होंने शुरू कर दिया है। इट्स अ मैटर ऑफ 5 साल 10 साल वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रोसेस बिल्कुल हमारे स्कूल की तरह है। जिस तरीके से मेरे फादर ने म्यूनिसिपल स्कूल या पब्लिक स्कूल जो गांव से पढ़ाई करके वो आगे बढ़े, वो पोजीशन बाद में 70s 80s के बाद बंद होना शुरू हुई। धीरे धीरे सभी लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। आज प्राइवेट में भी रैंकिंग आ गई है, प्राइवेट इंटरनेशनल, फिर मिशनरी स्कूल। तो उस अपनी अपनी रैंकिंग के हिसाब से और अपने अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से लोग भेज रहे। सेम मॉडल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का होने वाला है कि वहाँ पर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो कम पैसा लेती है वो आएगी, जिसकी शायद स्टेटस बहुत कम होगा सोसाइटी में। कुछ प्राइवेट आएगी जो जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, और उससे भी अगर सिचुएशन ख़राब करनी है तो अब फाइनली फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल पास हो चुका है हमारे देश में, और अब फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस इस देश में आएंगे। वो एक अलग लेवल की हायरार्की करने वाले हैं। मैक्सिमम 10 साल की बात है, ये सिचुएशन होने वाला है। और इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि मुझे राहुल का इसमें धन्यवाद देना है कि इस मुद्दे को हम अब उठा रहे, ये बहुत ही राइट टाइम है, और हमें इसको सीरियसली सोचना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर का मतलब कॉन्क्रीट टर्म्स में कि हम क्या डिमांड करना चाहते हैं। और ये डिमांड आपके लोकल लेवल MLA से लेकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर मिनिस्टर या इवन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है उस तक आपको वो प्रेशराइज करनी है। तभी जाकर के ये रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर का जो हमारा इनिशिएटिव है ये कुछ कॉन्क्रीट रूप ले पाएगा। यही बात रख के मैं यहाँ रुक जाता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं हमारे जो दोनों वक्ता हैं जिन्होंने बहुत ही बारीकी से अनिल सर ने और प्रोफेसर मस्कर ने, दोनों ने बहुत बारीकी से अपनी बात रखी कि किस तरीके से कास्ट जो है एक मेजर फैक्टर है आज के इस कॉरपोरेट इकोनॉमी में और प्राइवेटाइजेशन के दौर में। तो कुछ चंद बातें मैं कहना चाहूँगा कि जो अनिल सर ने खास करके कुछ बातों का जिक्र किया कि जाति जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर में किस तरीके से फंक्शन होती है। तो जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि जाति तो गांव में है, जाति केवल गांव में है, तो एक और जाति जो है एक छुआछूत का मसला है। जाति एक ऐसा मसला है जहाँ पर आप एक दूसरे जाति से शादी नहीं करते हैं। तो ये मोटा मोटी जो है एक अंडरस्टैंडिंग है, और यही जो है बहुत लंबे समय तक हमारे समाज के जो विचारवंत भी रहे हुए हैं, दे ऑल्सो पेडल द सेम डिस्कोर्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु रोट अबाउट कास्ट, दे मोस्टली रोट सेइंग that how caste is about touchability and untouchability. But जब बाबा साहब जाति के बारे में लिखते हैं, स्पेशली इफ यू रीड हिज फर्स्ट पेपर विच इज कास्ट इन इंडिया, और इवन उसके बाद में भी बाबा साहब जब जाति के बारे में लिखते हैं तो वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ही सेज दैट द कास्ट इज अबाउट द मोनोपोली ऑफ वन कास्ट और अनदर कास्ट। जिस तरीके से वो कहती है कॉलोनाइजेशन है, जिस तरीके से एक देश अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने भारत के रिसोर्सेस पर कब्जा किया, लोगों पर कब्जा किया। जिस तरीके से बाबा साहब कहते हैं यह अनैतिक है, उसी तरीके से एक जाति का दूसरे जाति पर कब्जा। और इसीलिए जाति जो है केवल छुआछूत का मसला नहीं है,
हो सकता है कि शहर में छुआछूत ना हो सकता है कि एक बनिया के होटल में मैं आज खाना खा सकता हूँ, लेकिन उसी बनिया के उस होटल के लाइन में अगर ऐसी चार, एक मैं सॉरी आई एम जस्ट आई विल गो लिटिल, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट इसको करूँगा। मैं अपने 10th क्लास में था और मैंने एक मैगज़ीन आती थी हमारे घर में जो हमारे समाज के लोगों के बारे में होती थी। तो मैंने मैगज़ीन में एक आर्टिकल पढ़ा और उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि एक नागपुर के हमारे व्यक्ति थे, वो रिटायर होने के बाद में उन्होंने कुछ पैसा जमा किया और उनकी दिलचस्पी थी कि वो ज्वेलरी की दुकान खोले। तो नागपुर के सोनावली जो एरिया है जहाँ पे सब सोनार की दुकान है, जो ट्रेडिशनली यहाँ के बनिया और बाकी मारवाड़ी चलाते हैं, जब वहाँ पे उनके पास इनफ पैसे हैं, पर्याप्त पैसा है जो दुकान वहाँ पे खरीद के अपनी दुकान लगा सकते हैं। सारे जितने भी वो दुकानदार थे, बनिया थे, उन्होंने बोला ये आदमी यहाँ पे दुकान नहीं खरीद सकता। और यही बात सुखदेव थोड़ा सर की स्टडी कहती है। वो ये कहते हैं कि गाँव में यदि कोई शेड्यूल कास्ट व्यक्ति ये सोचता है कि चलो मेरे घर का एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पे, उन्होंने मुझे कुछ पैसा दिया, मेरे बड़े भाई गवर्नमेंट जॉब पे, उन्होंने मुझे पैसा दिया, बोला कि तुम पढ़े लिखे नहीं, तुम गांव में एक दुकान खोल दो। तो स्टडी ये कहती है कि जब कोई दलित, कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति दुकान खोलता है तो पूरे गांव के अपर कास्ट गोलबंदी करके ये कहते हैं कि तुम इसकी दुकान से कुछ नहीं खरीदोगे, या फिर वो धमकी देता है कि तुम्हें दुकान बंद करो। तो बात जहां तक कि ये तो खुले रूप से जाति का स्वरूप है, लेकिन जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाति किस तरह से फंक्शन होती है, सर ने हमको बहुत बारीकी से बताया। ही यूज द वर्ड दैट इन द कॉर्पोरेट सेक्टर देयर इज सटल डिस्क्रिमिनेशन, एंड देन ही आल्सो यूज द वर्ड हेजेमनी, दैट देयर इज दिस ब्राह्मीण अपर कास्ट हेजेमनी विच एग्जिस्ट इन कॉर्पोरेट सेक्टर, एंड व्हाट इज दैट हेजेमनी, हाउ इट फंक्शंस, और सर ने उसका भी जिक्र किया। नाउ फॉर इंस्टेंस, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा, अगर आप, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, ये मेरा एक, आप महाराष्ट्र में अगर हर जगह जाएंगे, पुणे, मुंबई, नागपुर, आपको बहुत कम ब्राह्मणों के ऐसे घर मिलेंगे जिनके घर का कोई एक व्यक्ति यूएस में बैठा हुआ नहीं है, या उनका कोई रिश्तेदार यूएस में नहीं है। हालांकि यही लोग नेशनलिज्म की बहुत बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ये डॉलर में कमाते हैं। तो अगर आप भारत में भी जैसे जब इंडियन ब्यूरोक्रेसी अंग्रेज के टाइम में बनी, तो अगर आप उस वक्त का नंबर देखोगे तो अंग्रेजों की ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज़्यादा बड़े तादाद पे काम करने वाले लोग जो थे इस देश के अपर कास्ट ब्राह्मण थे। और अभी जो यहाँ से जाके जो फॉरेन कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर हिंदू अपर कास्ट है। और ये हिंदू अपर कास्ट वहाँ पे जाके अपना एक वर्चस्व बना के बहुत सटल तरीके से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इवन बैकवर्ड क्लास के लोगों को एंट्री नहीं देता है। उसके वो अलग अलग कारण बताता है। अभी पूरे दुनिया में कॉरपोरेट सेक्टर में इस तरह के कोई डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ बनी है, सर ने उसका जिक्र भी किया। लेकिन इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर में आज भी डाइवर्सिटी के नाम पे केवल और केवल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है। लेकिन जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है तो उसमें, या फिर जेंडर रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो उसमें केवल और केवल ज़्यादातर आपको अपर कास्ट वीमेन दिखती है। शेड्यूल कास्ट की जो महिलाएं अच्छी जगह से पढ़ी भी, यदि वो चाहती है कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी पोजीशन पे जाना, तो उनके लिए उस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है। इसीलिए हम ये समझते हैं कि पूरे दुनिया में अगर रूलिंग कास्ट है, एक सत्ताधारी वर्ग है, तो सत्ताधारी महिला भी होती है, सत्ताधारी केवल पुरुष नहीं होता है। तो भारत में अगर अपर कास्ट आदमी रूलिंग कास्ट और रूलिंग क्लास है, तो हमें यह भूलना नहीं चाहिए उसी रूलिंग क्लास की जो औरत है, उसी रूलिंग क्लास में अपर कास्ट औरतें भी है जो नहीं चाहती है कि रूलिंग की दबे कुचले समाज से चाहे आदमी आए या उनके समाज की कोई महिलाएं कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़े पोजीशन पे आए। तो ये जो जेंडर का डिस्कोर्स है, जिसको होमोजीनियस समझा जाता है कि सारी महिला एक समान है, सारी महिला एक समान नहीं है। और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग कहते हैं, दुनिया में कहते हैं कि अमीर आदमी तब बनता है जब मेहनत करता है। मेरे ख्याल से अगर मेहनत अगर पैमाना होता अमीर बनने का, तो इस देश में सबसे ज़्यादा अमीर दलित और आदिवासी महिलाएं होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत करती है। लेकिन मेहनत पैमाना नहीं है। जैसे सर ने कहा कि एक सोशल कैपिटल, सोशल नेटवर्क चलता है। रेफरेंस, यूज द वर्ड रेफरेंस। व्हाट इज दैट रेफरेंस? रेफरेंस ये होता है, योर टाइम ब्राह्मण, तमिल ब्राह्मण है आप, बड़े सही तरीके से मैं एक तमिल ब्राह्मण को अंदर लेके आऊँगा।
और दूसरे कैंडिडेट को बोलूँगा नॉट फाउंड सूटेबल। IIM से IIT से पढ़ा हुआ शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को आप नॉट फाउंड सूटेबल कहते हैं उसी कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो ये, लेकिन भारत में कास्ट को जो है वो लोग ये कहते हैं कि नो, देयर इज नो कास्ट इन इंडिया, इन अर्बन सिटिंग देयर इज नो कास्ट, इन कॉर्पोरेट देयर इज नो कास्ट। तो जाति जो है उन्होंने एक दलित की समस्या बना के रखी हुई है कि जाति का मतलब आरक्षण, जाति का मतलब कास्ट एट्रोसिटी। बाबा साहब ये कहते हैं कि कास्ट इज नॉट अबाउट दलित्स, कास्ट इज नॉट अबाउट अनटचेबल्स, कास्ट इज अबाउट द अपर कास्ट ब्राह्मण। बिकॉज अगर किसी सिस्टम का मुझको फायदा होता है, मैं आदमी हूं और पितृसत्ता का अगर मुझे फायदा होता है तो मैं उसको दोबारा बनाऊंगा। तो जाति का फायदा अपर कास्ट को होता है, तो वो उन्होंने नया स्वरूप लाया है कि जाति की बात ना करके जाति को पैदा करना, रिप्रोडक्शन, उसको रिप्रोड्यूस करना। वो आप कैसे करते हो? जाति को रिप्रोड्यूस सबसे ज़्यादा आज के तारीख में इस देश की मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस कर रही है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे आपका जुडिशरी क्यों ना हो। आपके जुडिशरी में शेड्यूल कास्ट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक जज ये कहता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ कि शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अत्याचार होता है, और शेड्यूल कास्ट के कोई जज भी नहीं है, लेकिन वो जज ये नहीं कहता है कि ऐसा लॉ बनना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति जज की कुर्सी पर बैठे, वो जज ये नहीं कहेगा। तो अभी क्या एक तरह का नए तरीके का प्रोग्रेसिव होने की बात है कि आप बात करेंगे कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन कौन सी महिला का होना चाहिए उसकी आप बात नहीं करते हो। क्या उन महिलाओं का नहीं होना चाहिए जो फूलन देवी की जाति से आते हैं? क्या उन महिलाओं का नहीं होना चाहिए जो भौतमंग की जाति से आते हैं? क्या उन महिलाओं का नहीं होना चाहिए जो सदियों से महिला ढोने का काम कर रही है? तो इसीलिए सर का जो एक पूरा जो एक जर्नी रहा हुआ है और जो एक एनालिसिस है दैट हाउ कास्ट वर्क्स इन कॉर्पोरेट, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर अस एंड वी रियली थैंक यू सर फॉर दिस अ वंडरफुल एनालिसिस एंड इंसाइट्स। इसको हम अपने संगठन और संगठन के बाहर भी इसको अपने नैरेटिव का हम हिस्सा कैसे बनाएं, इसकी हम जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन ऑन कास्ट इन कॉर्पोरेट। साथ ही साथ प्रोफेसर मस्कर ने बताया हमें कि प्राइवेट सेक्टर क्या है। एज अ वेरी गुड टीचर, अ गुड प्रोफेसर, ये एक्सप्लेन हमको बताया इन्होंने कि प्राइवेट सेक्टर दो तरह का है, एक जो ऑर्गेनाइज है और दूसरा है जो इनफॉर्मल है। सर ने बताते हुए ये बात कही कि इनफॉर्मल जो इकोनॉमी है वो इस देश में 90% के अबाव है, जो कि हमेशा से रही भी हुई है, और आज वो अराउंड 98% के आसपास हो गई है। तो ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट सेक्टर में आप रिजर्वेशन दीजिए, बट व्हाट अबाउट द इनफॉर्मल इकोनॉमी, जहाँ पे मैंने गांव से अपने जाति के व्यक्ति को लाया और बोला कि तू ही काम करेगा। ये थोड़ा सर के स्टडी को साइड करते हुए इसका आप क्या करेंगे? लेकिन इससे थोड़ा सा हटके मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप अर्बन इकोनॉमी देखोगे तो अर्बन इकोनॉमी बारीकी से अगर उसको देखा जाए तो वो दो तरीके से फंक्शन करती है। एक ये कि कुछ सेक्टर में आप चाहते हैं कि आपके जाति के व्यक्ति काम करें, लेकिन ज़्यादातर जो चीप लेबर आता है, जिसको आप चीप लेबर कहोगे, जो 14 घंटे नौकरी करता है, जो आपके होटलों में प्लेट साफ करता है, जो आपकी सड़कें साफ करता है, जो आपका कंस्ट्रक्शन मजदूर है, जो आपका स्टेशन पे छोटा मोटा सामान बेचता है, या फैक्ट्रियों में छोटे मोटे कारखानों में जो 14 घंटे काम करता है 10,000 के लिए, 8,000 के लिए, 5,000 के लिए, या बंगलों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, किसी घर में पोछा लगाने वाली, झाड़ू लगाने वाली, इन सभी को अगर इकट्ठा आप देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं काम करती है और पुरुष काम करते हैं। और इनके वजह से, जैसे एक दिन में हम लोग जब बात कर रहे थे, द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के पास में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपने मनी सेव करना चाहिए। गरीब आदमी सेव नहीं कर पाता है, वो जितना कमाता है वो उतना उसको कम है, वो बच्चों का हेल्थ, खुद का हेल्थ, खाना पीना, इसमें ही वो जो है उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। अगर वो बीमार पड़ा तो उसके पास उतना ही पैसा नहीं होता कि वो अपना इलाज भी कर सके। तो सेविंग उनके लिए कॉन्सेप्ट नहीं, सेविंग मिडिल क्लास के लिए कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप ये सेविंग कैसे करते हैं? अगर मोटा मोटी लेवल पे देखा जाए, व्हेन यू गो टू मॉल, जब आप मॉल में जाते हैं तो देयर इज़ नो बार्गेनिंग। तो आप बार्गेनिंग कहाँ पे करते हैं? आपके घर में जो काम करने आती है, आप उसको कहते हैं मैं तुमको 1000 नहीं दूंगी, 500 रुपये में काम करेगी क्या? बता,
वहाँ पे आप निगोशिएट करते हैं, आप सब्जी बाजार में निगोशिएट करते हैं, आप गराज वाले के साथ निगोशिएट करते हैं, आप इनफॉर्मल इकोनॉमी में इस देश का मिडिल क्लास निगोशिएट करके जो पैसा बचता है उसको सेव करता है, क्योंकि आप बहुत सारे सेक्टर जहाँ पे सेव नहीं कर सकते, आपके बच्चों की फीस में आप सेव नहीं करते हो। जब आपकी स्कूल बोलती है कि आपको 1 लाख देना ही पड़ेगा, यू कैन से कि नहीं मैं 50,000 दूंगा, यू कैन डू दैट। आप कहोगे नहीं मैं 1 लाख दूंगा क्योंकि मेरे बच्चा जो है बहुत बड़ा बनना चाहिए, तो यू डू दैट। सो माइन्यूटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यस, इन थोराज स्टडी ही फाउंड आउट इन इनफॉर्मल इकोनॉमी कुछ चुनिंदा लोग ऐसे एम्प्लॉयर है जो अपने जाति के ही लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी रियलिटी है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूट करता है अपने लेबर से वो इस देश का शेड्यूल कास्ट है, इस देश का शेड्यूल ट्राइब है। आप मुंबई का इकोनॉमी देखिए, मुंबई का 60+% GDP कम्स फ्रॉम स्लम। अब स्लम में कौन रहता है? शेड्यूल कास्ट रहता है, मुसलमान रहता है, सबसे ज़्यादा लोअर कास्ट मुसलमान रहता है जिसको हम पसमंदा मुसलमान कहते हैं, आदिवासी रहता है, लोअर ओबीसी रहता है, जो आपकी पूरी इकोनॉमी चलाता है। और साथ ही साथ ऑक्सफैम का जो अभी रिपोर्ट आया है वो ये कहता है कि इस देश के जीडीपी में सबसे कम जो कंट्रीब्यूट करता है वो इस देश का अपर क्लास और रीच है, जो 2 से 3% तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कंट्रीब्यूट करता है। और सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो इस देश का वर्किंग क्लास करता है, क्योंकि वो सुई लेता है, धागा लेता है, पान लेता है, गुटखा लेता है, दारू लेता है, वो सब कुछ लेता है। एवरीथिंग वॉट यू प्रोड्यूस वी कंज्यूम, वी बाई इट अपने पैसों से। तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारा है। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी में भी अगर हमको राइट मांगना है, तो जो आप बोल रहे थे मैं उसको सोच रहा था कि वी वांट, जहाँ पे हमारे लोगों को एम्प्लॉय नहीं किया जाता है वहाँ पे आप राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक्ट गवर्नमेंट लगाना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के साथ में अगर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी अगर कोई डिस्क्रिमिनेट करता है, अगर कोई उसे एम्प्लॉय नहीं करता, या उसकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए कि हर सेक्टर में, इवन इनफॉर्मल इकोनॉमी में भी अगर आप लोगों को जॉब देते हैं, नौकरी देते, तो वहाँ पर भी आपको कुछ परसेंटेज शेड्यूल कास्ट के लोगों को एम्प्लॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो बट ये कोई एक पॉलिसी से नहीं होगा, हम कह रहे हैं कि इसका एक एक्ट बनना चाहिए जिसके ऊपर डेलिब्रेशन हो सकता है, वी कैन डिस्कस फर्दर। गोइंग लिटिल फर्दर और कंक्लूडिंग दिस सेशन, भाव ने जैसे कहा कि एजुकेशन, नाउ एजुकेशन में जैसे प्रोफेसर ने कहा कि एजुकेशन जो है अभी प्राइवेटाइजेशन इज ए रियलिटी, यू कैन स्टॉप इट एनी मोर। जैसे अर्बनाइजेशन है, ये रियलिटी है, जो आज गांव है कल शहर होगा, और जो शहर है उसके बगल में कल एक झोपड़पट्टी बनेगी, क्योंकि शहर को चलाने के लिए सस्ता लेबर चाहिए, सस्ता और सस्ते लोग चाहिए आपको। वो लोग हमको सस्ता समझते, सस्ते लोग चाहिए जो दिन के एक रोजी रोटी के लिए मेरा पूरा घर साफ कर दे, मेरा घर का सामान ग्राउंड फ्लोर से 10वें फ्लोर पे केवल 100 रुपये में लेके जाए, और बीच में अगर चोट आई तो उसका पैसा उसको मैं नहीं दूंगा, मुझे वो सस्ता आदमी चाहिए। तो गांव प्राइवेटाइजेशन को कोई रोक नहीं सकता है, गांव को शहरों में बदलने में कोई रोक नहीं सकता है, और शहर के बगल में झोपड़पट्टी बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, रियलिटी है। तो ऐसी हालत में हम क्या करें जहाँ पे आपने सरकारी संस्थाओं का बजट कम कर दिया। आई स्टडीड इन JNU, जब मैं JNU में गया ना, आई वाज सरप्राइज्ड कि मुझे साल का 150 रुपये फीस देना पड़ रहा है केवल। मेरे को हॉस्टल मिल रहा है, मुझे अच्छा खाना मिल रहा है, मुझे 24 घंटे लाइब्रेरी है, आई एम फ्री टू टॉक व्हाट आई वांट टू टॉक। आई हैव अ प्रोफेसर जो मेरे दोस्त जैसे, जो मुझे अपने साथ में बैठा के पढ़ाते हैं। मैंने बोला ये इस तरह की जो यूनिवर्सिटी है वो गढ़चिरौली में क्यों नहीं है, वो झारखंड में क्यों नहीं है, वो दूर दराज के बिहार यूपी में क्यों नहीं है। और महाराष्ट्र और कर्नाटक का भाव ने जिक्र किया, महाराष्ट्र के अंदर एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, एक है जो हिंदी यूनिवर्सिटी है, वो कि कुछ काम की नहीं है, और वहाँ के सारे तो यूपी के पंडित बैठे हुए हैं। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कोई डिमांड नहीं उठाई? नो, देयर वाज अ डिमांड। बहुत बार महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को डिमांड की गई कि महाराष्ट्र में एक फर्स्ट 5 स्टार सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाए, जहाँ पर गरीब बच्चे, इवन अमीर बच्चे भी सेम फीस देके पढ़े, जहाँ पे सभी कोर्सेज को पढ़ाया जाए। महाराष्ट्र सरकार जो मराठों के हाथ में अक्सर रही हुई है, यहाँ का एजुकेशन ब्राह्मणों के हाथ में रहा हुआ है, और व्यापार बनी और मराठों के हाथ में रहा हुआ है। इनके नेताओं ने यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को आने नहीं दिया, और जो थी उसको बर्बाद किया। मुंबई यूनिवर्सिटी एक ज़माने में इट वॉज अ रिनाउंड यूनिवर्सिटी, आज मुंबई यूनिवर्सिटी में
मुंबई का बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है। नागपुर यूनिवर्सिटी में नागपुर के बच्चे नहीं पढ़ना, वो पढ़ते तो खुद बताते हैं कि एक परमानेंट फैकल्टी, बाकी सब गेस्ट। तो जिसको आप दिन का 200 रुपये दे रहे हो वो क्यों मन से पढ़ाएगा? या किसी को भी रिक्रूट कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि इस देश के जो तथाकथित लैंड ओनिंग कास्ट है जो सत्ता में बैठे, हमने देखा उन्होंने अपने राज्य में सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को नहीं आने दिया ताकि उनके जो प्राइवेट धंधे जो यूनिवर्सिटीज़ है वो बंद ना पड़ जाए, या उसको उससे कैसे प्रॉफिट कमाया जाए। तो मराठा कम्युनिटी जब भी आरक्षण की मांग करती है उसमें एक नारा डाल देती है, SC/ST ॲक्टला रद्द करा आणि मग मधात ते SC/ST का रिझर्वेशन बंद करू। देयर लीडर्स आर नॉनसेंस एंड देयर आर्गुमेंट्स आर देयर इडियोटिक पीपल। वो कभी इस बात को नहीं पूछते हैं कि लीडर हमारे, सरकार इन्होंने चलाई, इन मराठा लीडरों ने एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई जहाँ पर गरीब मराठा साल का 150 रुपये देके पढ़ सकता था जैसे जेएनयू में पढ़ सकता है। इन्होंने ये सवाल कभी नहीं उठाया। हमारे समाज के लोग बार बार ये खत लिखते सरकार को कि आप महाराष्ट्र में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाइए, केंद्रीय विद्यालय बनाए, केंद्रीय जो यूनिवर्सिटी है वो बनाइए, विश्वविद्यालय बनाइए जहाँ पर गरीब का बच्चा कंप्यूटर साइंस भी पढ़ सकता है, BSc भी कर सकता है, MSc भी कर सकता है, लैंग्वेज भी पढ़ सकता है, सोशोलॉजी भी पढ़ सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है। तो ये अभी रियलिटी है कि डोमिनेंट कास्ट एक तरह का कैपिटलिस्ट जो भाव ने बोला बन गया है, चाहे वो रेड्डी हो, कम्मा हो, चाहे वो यहाँ के मराठा हो, जो पूरे कॉर्पोरेटिव इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। ये बात करते बड़ी बड़ी है, ये लोग खुद दारू बनाते हैं, इनके दारू के कॉर्पोरेटिव्स हैं। इसको पीने वाला गरीब दलित आदिवासी है जो मरता है उस दारू से। तो हम तो अभी ये जो सर ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन इज रियलिटी, और आज के इस तारीख में हम लेट है, उन्होंने कहा कि हम लेट है। हमें जो है 1950 में 1950s में ही प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण की डिमांड कर देनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त हमने नहीं की। अभी हमारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं या विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं, इनको ये बताना ज़रूरी है कि आप विधानसभा में जब जा रहे हैं, पार्लियामेंट में जब जा रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि समाज की ये जो डिमांड है, ये जो मांगे हैं, आपको बहुत सीरियस तरीके से उठानी चाहिए। केवल और केवल आपके आका का डंडा चलेगा तब आपने बोलना नहीं है। हाँ, दे आर सरप्लस लीडर। जैसे सरप्लस होता है ना, आप घर में जब सब्जी कोई नहीं रहती है बरसात के टाइम पे, तो आप जो कुछ लोग बना के रखते हैं, बड़ी बना के रखेंगे, उधर फिशिंग कम्युनिटी के लोग मच्छी सुखा के रखते हैं, तब आप खाते हैं उसको जब कुछ नहीं रहा। शेड्यूल कास्ट के चुने हुए लीडरों की यह हालत है पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर, कि जब कुछ काम नहीं रहा, इलेक्शन आ गए, जाओ रे भाई अपने समाज में जाओ, एक बाबा साहब का स्टैचू बना दो, जाओ ये कर दो। जब ये लोग हमारे समाज में आते बोलते मैं बुद्ध विहार बनवून देनार, इनको बोलो डोंट मेक बुद्ध विहार फॉर अस। हम लोग बुद्ध विहार बना लेंगे 2 लोग मिलके, अगर हमको नौकरी होगी। हमको रिजर्वेशन चाहिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ये हमारी डिमांड होनी चाहिए हमारे नेताओं के सामने। इसी के साथ इस सेशन को मैं कंक्लूड करता हूँ और प्रशिता को हैंड ओवर करता हूँ। इसके बाद प्रशिता हमें बताएगी कि आगे क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।